خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں سب کو سلام کہتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آگ اور گندگ کی جھیل کے تعلق سے کلام کروں۔ تو ہمارے سامنے جو حوالہ پڑا گیا مکاشفہ 19 آیت، مکاشفہ 19 آیت یہ کہتی ہے، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندگ سے جلتی تھی، جو گندگ سے جلتی۔ تو بات یہ ہے، پہلے نمبر پہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جھیل ہوتی کیا ہے، جھیل کیا ہوتی ہے؟ تو بتا سکتا ہے کہ جھیل کیا ہے؟ ہاں جی، پانی کا وہ ذخیرہ جو پہاڑوں کے درمیان میں جمع ہو جاتا ہے۔ لفظ جھیل سے مراد ایسی جگہ جو کسی مائع چیز سے ہمیشہ بھری ہے۔ مثلاً پانی کی جھیل وہ ہے، وہ جگہ ہے جس میں پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ تالاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے پانی، اور وہ پانی اس میں بھرا رہتا ہے ایک وادی میں۔ اور آگ اور گندگ کی جھیل وہ چیز ہے جس میں آگ اور گندگ اور دوسری معدنیات اور غیر معدنیات پگھلی ہوئی حالت میں موجود ہو، اور چونکہ بعض چیزوں کا درجہ پگھلاؤ بہت اونچا ہوتا ہے، اس لیے پگھلی ہوئی چٹانوں پر یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ معدنیات یعنی کہ لاوا کا جو درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں تقریباً سب چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں جلنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس لیے وہاں آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اسی طرح سورج بھی ایک پگھلی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے لاکھوں میل اونچے جاتے ہیں، لیکن سورج ہمیشہ ایسا نہیں ہے، سورج ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، بلکہ کسی وقت ٹھنڈا ہو جائے گا، کسی وقت بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب زمین جو ہے یہ بنی تھی تو زمین بھی اسی طرح پگھلی ہوئی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، مگر آج بھی زمین کے مرکز میں پگھلا ہوا لاوا ہمیں ملتا ہے، اور آتش فشاں پہاڑ جب بھی پھٹتے ہیں تو یہ لاوا جو ہے یہ باہر آ جاتا ہے۔ لہذا آگ کی جھیل جو ہے یہ کوئی فرضی یا کوئی خیالی جگہ نہ سمجھ لیں، بلکہ ایک حقیقی جگہ ہے جہاں آگ ہمیشہ پگھلی حالت میں رہتی ہے۔ اور اجرام فلکی بھی مختلف قسموں کے ہیں، مثال کے طور پہ ان میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہیں، دمدار ستارے ہیں، اور پھر بونے ستارے وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان کی طبعی حالت جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے مختلف درجوں میں سے گزرتی ہے۔ بعض ابھی جل رہے ہیں، بعض جل کر ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اور جب ستارے ایک دم تیزی سے جل کر ٹھنڈے ہو جائیں تو اسے نووا لگنا کہتے ہیں۔ بعض ستارے نووا کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور بعض ابھی نہیں پہنچے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ناقابل بیان وجوہات کی بنا پر پونے ستارے یعنی مجر ستارے جو مجر سٹار جو ہیں یہ کبھی ٹھنڈے ہوتے ہی نہیں، یہ ہمیشہ جلتے رہنے والے ستارے ہیں، یہ ہمیشہ جلتے رہنے والے ستارے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان میں پگھلی آگ ہمیشہ قائم رہتی ہے،
خدا و خالق کائنات ہے، ان سے اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح وہ علم رکھتا ہے، اور چنانچہ اس نے ایسا کوئی ستارہ ہو سکتا ہے کہ چن رکھا ہے جہاں پگھلی ہوئی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی، جسے وہ آگ اور گندے کی جھیل کے طور پر استعمال کرے گا۔ کلام مقدس میں آگ اور گندے کی جھیل کا محل ہمیں نظر نہیں آتا، بتایا ہی نہیں گیا، اور اس ذکر سے اس کا ذکر سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کیا، کیونکہ وہی بنانے والے وہی علم رکھتے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خداوند مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں اس کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ آگ اور گندے کی جھیل کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں سارے 33 سال کی عمر تک اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آسمان پر جانے کے تقریباً 62 سال بعد، آسمان پر جانے کے تقریباً 62 سال بعد آگ اور گندے کی جھیل کا ذکر کیا، جب وہ یعنی کہ یوحنا پتمس کے جزیرے میں موجود تھا اور خداوند یسوع مسیح کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا اور یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا۔ کافی ذکر کرنے کے بعد اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی اور نہ اس کا محل وجود بتایا جا سکتا، کیونکہ بنانے والے نے خداوند یسوع مسیح نے ہی نہیں بتایا۔ یہ نام صرف مکاشفہ کی کتاب میں پایا جاتا ہے اور 3 مختلف ناموں کے تحت، یعنی آگ اور گندے کی جھیل 3 مرتبہ مکاشفہ 19 کی 20 میں، 20 کی 10 میں اور 21 کی 8 میں اسے آگ اور گندے کی جھیل کے نام سے پکارا گیا۔ آگ کی جھیل 2 مرتبہ، اس کا ذکر مکاشفہ 20 کی 14 اور 15 میں، آگ اور گندے کا عذاب 1 مرتبہ مکاشفہ 14 کی 10 میں، اس کے علاوہ باقی بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ البتہ بہت سی جگہوں پر اسے دوسرے ناموں سے پکارا گیا ہے، جس کا اشارہ بھی اسی آگ اور گندے کی جھیل کی طرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر متی 5 کی 29 اور 30 آیت میں اسے جہنم کیا کہا گیا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے پڑھ سکتا ہے، متی 5 کی 29 اور 30 آیت مل گیا جی؟ ہاں جی پڑھیں گے ذرا۔ بس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، یعنی کہ متی 5 کی 29 30 میں، 10 28 میں اور 23 باب کی 15 آیت میں اور 23 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مرکز میں، لوکا میں، ایوب میں، انسان میں بھی یہ جہنم کا لفظ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آگ کا جہنم کیا لکھا ہے؟ آگ کا جہنم، اور یہ ہمیں متی کے انجیل کے 5 باب کی 22 آیت میں، 18 کی 9 آیت میں ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آگ کی بھٹی، اور اس کا ذکر ہمیں متی 13 کی 42 آیت میں ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہمیشہ کی آگ، متی 18 کی 8۔ پانچویں نمبر پہ ہمیشہ کی سزا، متی 25 کی 46۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جس کا ذکر جہنم کے طور پر وہ جہنم ہے کیا، اور اسے جہنم کیوں کہا ہے؟ لفظ جہنم، یہ جو جہنم ہے نا، یہ یونانی کے لفظ سیفانا کا ترجمہ ہے، جو کہ عبرانی لفظ توفت سے لیا گیا ہے، جسے اردو میں توفت لکھا ہے ہماری بائبل، جس کا ترجمہ ہمون کی وادی ہے جو کہ یروشلم کے جنوب میں واقع ہے۔ اور پرانے احکامہ میں اس کا ذکر 13 مرتبہ ہوا، یشوع میں، سلاطین میں، تواریخ میں اور یرمیہ میں۔ ان کتابوں میں 13 مرتبہ اس کا ذکر جو ہے توفت کی وادی کا ہمیں ملتا ہے، اور اس وادی میں
केनानी कौन है? आग के देवता मौलक के आगे अपने बच्चों को कुर्बान करती थी। क्या करती थी? अपने बच्चों को कुर्बान करती थी। इसलिए आग वहां हमेशा जलती रहती थी। और शाह यहूदा आकब और मनसी इस नापाक बुत परस्ती की रस्म पर उन्होंने अमल किया। और बाइबल को अगर पढ़े दूसरी तवारीख 28 बाब की 3 आए तो यहाँ पे इनके बारे में जिक्र हमें मिलता है। दूसरी तवारीख 28 की 3 आए। इसके सिवा उसने हारून के बेटे की वादी में बखूर जलाया और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका, अपने ही बेटों को आग में झोंका। और मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि शाह यहूदा यूसिया सबूत परस्ती को आकर के खत्म करता है और वहां पर उसने नजासत डलवाई और इस जगह को ऐसा नफरत अंगेज बनाया कि गैर कौमें भी बुत परस्ती ना कर सके। और इसके लिए आप दूसरी सलातें उसके 23 बाब की 10 आयत को पढ़ें तो आपको इसके ताल्लुक से लिखा हुआ मिलेगा। वहां लिखा है उसने तूफत में जो बनी हारून की वादी है, वादी में है निजासत फंकवाई ताकि कोई शख्स मोले के लिए अपने बेटे या अपनी बेटी को आग में ना चलवा सके, आग में ना चलवा सके। तो बात यह है यहां पे मौलिक देवता का लोहे का बुत होता था जिसके पेट में हर वक्त आग जलती रहती थी। उसके हाथों में अपने बच्चों को रख देते थे और उस आग से वो बच्चे जल करके भून करके राख हो जाते थे। और ये वो समझते थे कि हमने अपने बच्चों को मोहल्ले की नजर कर दी है। अपने बच्चों को किसकी नजर किया है? मोहल्ले की नजर किया है। और खुदावन के शुद्ध दौर में इस वादी में यरूशलेम का तमाम कूड़ा, गंदगी और निजासत फेंकी जाती थी। इसीलिए इस तरफ खुलने वाले शहर के दरवाजे का नाम भी कूड़ा फाटक था। अगर आप नहमिया उसके 2 की 13 को पढ़े तो वहां पे साफ लिखा है कि कूड़ा फाटक। निकालने जरा इसको नहमिया को। नहमिया 2 बाब में 13 है। नहीं क्या जी? और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अल्लाह के कुएं और कुएं के फाटक को गया और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। यानी कि चूंकि यहाँ पर कूड़ा डाला जाता था, ये बेन हनून की वादी, अब इसको कूड़े की वादी कहते थे और इस फाटक को भी इस तरफ खुलता था, कूड़ा फाटक कहा गया। यहाँ कूड़े और गंदगी के ढेरों पर मरे हुए जानवरों और मुर्दा मुजरमों की लाशें भी फेंकी जाती थी। यहाँ कूड़ा हमेशा जलता रहता था और गंदगी के कीड़े लाशों को खाते रहते थे। इसलिए गुलाम यीशु मसीह ने फरमाया, अगर आप मरकस 9 की 43 और 44 आयत को पढ़े तो यीशु ने जहन्नम के बारे में कहा कि वहां आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता। पढ़े इसको पढ़े तो पता चलेगा। आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता। हाँ, 43 ऐसे मैं पढ़ रहा हूं। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रखते हुए जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव होते हुए जहन्नम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो लिखा है ना, जहां उनका कीड़ा नहीं
मरता और आग नहीं बुझती। बस यूं कहना गलती नहीं होगा, यूं कहना गलती नहीं होगा कि जहन्नम खुदा का कूड़े का ढेर है। जहन्नम खुदा का कूड़े का ढेर है, और जो कुछ खुदा की नजर में फजूल और बेकार है, जो कुछ नासर है, क्या कहा, जहन्नम क्या है, अच्छी जगह है, कूड़े का ढेर है। और खुदा की नजर में जो बेकार चीजें हैं, जो फजूल चीजें हैं, जिसे वो अपने घर या सामान में रख नहीं सकता, उसे जहन्नम यानी कूड़े के ढेर में फेंक कर जलाता है। उसे जहन्नम यानी कूड़े के ढेर में फेंक कर जलाता है। मैं कहता हूं कि क्या हम खुदा की निगाह में कूड़ा नहीं कभी सोचा? यहां फिर कीमती चीज है। अगर हम यीशु के लिए काम नहीं कर रहे, हमारे गैर कौमों से ताल्लुकात, गैर कौम में उठना बैठना यीशु को जाहिर नहीं कर रहा, तो हम कूड़ा है। हम क्या हैं? कूड़ा है। और मत ख्याल करें कि कूड़ा जो है वो खुदा के घर में रह सकता है, क्योंकि उसका तो घर बार है। वो कूड़े को अपने घर में नहीं रखेगा, वो हमेशा की आग में डाल देगा, वो हमेशा की आग में डाल देगा। हम बड़ा मत फख्र करते हैं हमारे ये तलकात, हमारे वो तलकात, लेकिन तलकात के बावजूद अगर आप वहां पे यीशु की गवाही नहीं देते हो तो तुम कूड़ा हो, तो तुम कूड़ा, वो चाहे मैं हूं या चाहे आप हो, हम सब कूड़ा हैं। लिहाजा कीमती चीज बनने के लिए हमें यीशु की गवाही देना जरूरी है। कीमती चीज बनने के लिए हमें यीशु की गवाही देना जरूरी है, क्योंकि जब हम पहला पत्रस उसके पहले बाब की 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खिलाफी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बदले यानी मसीह के देश की मत खून से, बल्कि मसीह के देश की मत खून से। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर आप उसके परस्तार नहीं हो तो ये समझ लें कि यीशु के खून से तुम्हारी खलासी भी नहीं हुई। तुम्हारा रहन सहन क्या है, तुम्हारा उठना बैठना क्या है, तुम्हारा चाल चलन क्या है, क्या वो खुदा को पसंदीदा है? अगर पसंदीदा है तो फिर तुम्हारी खलासी यीशु के खून से हुई है और तुम कूड़ा नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हारा चाल चलन खुदा को पसंद नहीं तो तुम यीशु के खून से मखलसी याफ्ता भी नहीं बल्कि कूड़ा। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, ऐसे लोगों को वो अपने पास रखेगा, मगर मसीह पर ईमान ना लाने वाले सब कूड़ा हैं जिन्हें वो जहन्नम में फेंक देगा, यानी आपकी झील में डाल देगा। कहां डाल देगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि आग और गंदगी झील उसने क्यों बनाई? आग और गंदगी झील उसने, अगर मत्ती 25 की 41 आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मौलाना मेरे सामने सो हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। यानी कि असल में आग और गंदगी झील जो है, ये हमेशा की आग जो है, ये जहन्नम जो है, ये इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनी। और अगर हमारा चाल चलन भी इब्लीस के फरिश्तों की तरह और इब्लीस की तरह का है तो हम मलाऊन हैं, लिहाजा हमें भी वहां पे ही रहना पड़ेगा, लिहाजा हमें भी वहीं पे रहना पड़ेगा। और इब्लीस की एक ख्वाहिश है कि अपने साथ, इब्लीस की क्या है जी? ये ख्वाहिश है कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा इंसानों को आग की झील में लेकर के जाए ताकि अकेला ना रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, आग की झील में कौन कौन डाले जाएंगे? ये बातें गौर तलब हैं, इनको सोच
سوچنا ہے. اور مکاشفہ 19 کی 20 آیت میں ہم نے دیکھا کہ حرام اور جھوٹا نبی زندہ ڈالے گئے. دوسری بات مکاشفہ 14 کے 9 سے 11 حیوان کے پرستار کو ہیں. حیوان کے پرستار آج کل LOL ایک مشن نکلی ہے جو کہ لوسیفر کے پرستاروں کی مشن ہے. لوسیفر آور لارڈ سے بنتا ہے. وہ لوسیفر کو اپنا خدا مانتے ہیں. وہ لوسیفر کو اپنا خدا مانتے ہیں. اور LOL ان کا جو ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں ان کا یہ مونوگرام ہے LOL. تو بات یہ ہے حیوان کے جتنے پرستار ہیں وہ اس میں ڈالے گئے. پھر مکاشفہ 19 کی 15 میں وہاں پہ یسوع خود انگوروں کو کچلتا ہوا دکھایا گیا. اور انگوروں سے مراد انسان ہیں جو قتل ہو گئے. یہ بھی آگ اور گندگی جھیل میں ڈالے گئے. پھر جب ہم متی 25 کی 41 کو پڑھتے ہیں تو بکریاں کون؟ بکریاں یعنی یہودیوں سے برا سلوک کرنے والی قومیں. غور سے سن لو میری بات. یہودیوں سے برا سلوک کرنے والی قومیں اور موجودہ زمانے میں فلسطین کے لوگ بنی اسرائیل کے سچ مخالف ہیں. اسی طرح لبنان، شام، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، لیبیا اور مصر، اردن، سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں تمام اسلامی قومیں یہودیوں کے خلاف ہیں. 14 مئی 1948 میں جب سے یہودیوں کو اپنا ملک ملا یہ قومیں کئی بار ان سے لڑ چکی. اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے ساتھیوں کے ساتھ یہودیوں کو آگ کی بھٹیوں میں زہریلی گیسوں جس کو ہولوکاسٹ بھی کہتے ہیں، ہاں جی، گیسوں سے اور گولیوں سے اور بھوک سے اور دردناک اذیتوں سے 6 ملین یہودیوں کو مار دیا. کتنے یہودیوں کو مارا؟ 6 ملین یہودیوں کو. وہ ٹھیکیدار تھا. وہ کہتا تھا کہ یہودیوں نے ساڑھے یسوع مسلم بیچارے کو ٹھیکیدار ہیں. اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو مارا. اور اصل میں یہ ابلیس کا منصوبہ تھا جس کے اوپر وہ عمل کر رہا تھا، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ خدا کی قوم یہود کے خلاف ہے. ابلیس اسرائیل کے خلاف ہے. کون خلاف ہے؟ بے شک وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا لیکن وہ ابلیس کے منصوبے پر عمل کر رہا تھا. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارے درمیان بھی کوئی ابلیس کے منصوبے پر عمل کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ابلیس کا پرستار ہے. پھر میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک یہودیوں کے قتل کے تشدد گواہ موجود ہیں. اور 1898 میں روس کے چھوٹے سے قصبے میں یہودیوں کا قتل عام ہے. یہ لکھے بے شک 16ویں صدی میں رومن کیتھولک چرچ نے کروسیڈز اور انکوزیشنز کے ذریعے سے یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جس کا اعتراف پوپ جان پال III نے جناب 2002 میں کیا اور معافی بھی مانگی. اور جناب روم والوں نے بڑا جناب برا منایا کہ پوپ صاحب نے کیوں معافی مانگی. 1551 میں جرمنی نے انہیں نکال دیا. 1540 میں اٹلی نے نکالا. 1501 میں روس نے نکالا. 1442 میں ہالینڈ نے نکالا. 1394 میں فرانس نے نکالا. اور 1380 میں چیکوسلواکیہ نے نکالا. 1317 میں بیلجیم نے نکالا. 1306 میں فرانس نے نکالا. 1290 میں برطانیہ سے نکلے. 1110 میں اسپین سے نکلے. اور 667 میں حجاز سے نکلے. یہ عرب کا شہر ہے حجاز. 1706 قبل المسیح میں فرعون نے ظلم کیا. اور یہ ظلم خروج پہلے باب کی 11ویں ہے 2-23 اس میں مرقوم ہے. 721 قبل المسیح میں شاہ اسور نے اسرائیل کے 10 قبیلے اسیر کر لیے.
दूसरी सलातीन उसके 17 की 6 और 18 की 11 में इसका जिक्र हमें मिलता है। 610 के मसीह में शाह बाबर नबूकदनेस्सर ने हैकल और शहर को तबाह करके जला दिया, दीवारें गिरा दी और यहूदियों को असीर करके बाबल में ले गया। दूसरी तबाही उसके 36 की 17 में, जहां से वो तितर बितर होकर के दुनिया के चारों कोनों में पहुंचाएंगे। और आज तक 3 की 6 में अगर इसको पढ़े तो आज तक के दौर में अक्सवीरस के एक वजीर हमान ने यहूदियों से वो इस कदर नफरत रखता था कि उसने एक यहूदी आदमी मर्दगी को मारने की बजाय सारी कौम को मारने का मंसूबा बनाया। इसी तरह मसीह के दौर में जो यहूदी इसराइल में आबाद थे उन पर रोमी हुकूमत ने बेपनाह तशद्दुद किए और 70 ईस्वी में उन्हें यरूशलेम से निकाल दिया। और ये जनरल तीतस की कार्रवाई थी। यरूशलेम की दीवारें गिरा दी, हैकल तबाह करती गई। यहूदी लोग उस वक्त से बगैर मुल्क, बगैर बादशाही, बगैर सरदार कहे और बगैर कुर्बानी के ढूंढते हैं। इन 36 सालों में यहूदी कौम ने ऐसे ऐसे गैर इंसानी तशद्दुद बर्दाश्त किए हैं जो अभी तक किसी कौम के साथ ऐसे तशद्दुद नहीं हुए। हम तो बेबलाव थे ना जब देखा कि शाम और इराक में 5 लाख मसीहों को कत्ल किया, लेकिन यहूदियों के साथ इससे कई गुना ज्यादा जुल्म हो चुका है। और मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, 14 मई 1948 को फिर भी इतने तशद्दुद के बाद ये मौजूदा तौर पर अपना मुल्क वापस लेने में कामयाब हो गए। ये हाल पिछले 4000 सालों में इस कौम ने जो बर्दाश्त किया वो खुदा को याद है और वो हिसाब लेगा और बेटे के वसीला से अदालत करेगा। कहने लगी वो आएगा अदालत करेगा तो बाद में मुसलमान हो जाएगा। हैं तो करैक्टर क्यों बड़ा सोना है, शर्म तो मानती कोई बेटे के वसीला से वो अदालत करेगा। यूहन्ना 5 की 20 को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। और मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब बेटे के सुपुर्द है अदालत का काम, तो जिन्होंने जो बकरियां थी यानी कि जिन्होंने उसके भाइयों से बुरा सलूक किया, वहां पे साफ लिखा है जब उन्होंने कहा खुदा तू कब भूखा था तो हमने तुझे खाना नहीं खिलाया, तू कब प्यासा था हमने तुझे पानी नहीं पिलाया, तू कब नंगा था हमने तुझे कपड़ा नहीं दिया, तो उसने कहा जब तुमने इन छोटों में से किसी के साथ नहीं किया तो मेरे साथ ये सलूक नहीं किया। और ये 7 साल उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जो आखिरी दौर होगा जिसमें यहूदियों और मसीहों को खाने के लिए खाना खरीदने की इजाजत नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़ा खरीदने की इजाजत नहीं होगी और सोने के लिए बिस्तर खरीदने की इजाजत नहीं होगी। ये 3 चीजें इंसान की जरूरत की चीजें हैं। और इन दिनों में वही को फरोख्त करेंगे जो कि हराम की परस्तिश करेंगे, जो कि शैतान के पैरोकार होंगे। इन्हीं को उसने करने वाले भी कहा है, शरीर के फरजंद कहा है। और मत्ती 13 की 34 से 43 आयत को पढ़े तो इनको अबलीस ने ये जो मतलब के ये इनके बारे में जो लिखा है ना, इनको अबलीस के फरजंद लिखा है। ये कलीसिया की बाबत नहीं बल्कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद शरीर के फरजंद आग की झील में डाले गए। मगर यहूदी राष्ट्रवाद जिंदा होंगे जो मसीह की बादशाही में बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। फिर 5वें नंबर पे अबलीस और उसके फरिश्ते, जैसा कि हमने मुकाशवा 20 की 11 में पढ़ा। 6वें नंबर पे मौत और आग में राब या आग और गंदक की झील में डाले गए। 7वें नंबर पे जिनके नाम किताब हयात में नाम मिले, मुकाशवा 19 की 15 को पढ़े तो ये सारे लोग आग और गंदक की झील में डाले जाएंगे, क्योंकि खुदा की नजर में ये पूरा है। खुदा की नजर में ये आज तो हुकूमतें करते हैं, जिसको जी चाह पकड़ करके जनाब भट्टी में फेंक दिया, जिसको जी चाह आग तेल डाल के लगा दी, जिसको जी चाह सो किया।
गले काट दिए, बम ब्लास्ट कर दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, ये सारे आप और अंदर की झील में डाले जाएंगे और इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। फलाने में जी आके हमारी सिफारिश करनी है, वहां पर सिफारिश चलनी ही नहीं है। जिसकी सिफारिश की बात करते हो उसके लिए तो अब तक तुम दुआएं करते हो। ये सब आग और गंदगी की झील में डाले जाएंगे। मैं आपसे कर देना चाहता हूं कि इनको छोड़कर हमें अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करना है। क्या मेरा चाल चला गैर मसीही तो नहीं, मसीह के मेरी जिंदगी अगेंस्ट तो नहीं, क्या मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूं, क्या मैं खुदा की नजर में कीमती हूं या मैं कूड़ा हूं ताकि जहन्नम में फेंक दिया जाए। अपनी जिंदगियों पे गौर करना है, अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। और मैं आपसे कर देना चाहता हूं कि गौर करना ही हमें तौबा की तरफ लेकर के जाएगा। ये गौर करना ही हमें बचाएगा। और अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर नहीं ना करते, हम तौबा करके बैठ गए हैं, इसके बावजूद भी हम में तफक्केबाजी है, हम में लालच है, हम में बदी है, वो तब भी लिया हुआ है। बड़े दावेदार हैं कि हम रूह को तो जाता है, लेकिन तफरीका डाल रहे हैं, तफरीकेबाज हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े बहुत कुछ हैं। तो समझ लें आप कूड़ा है, समझ ले कि आप कूड़ा है। और यीशु मसीह ने तफरकों को लेने नहीं आना, दुल्हन को लेने आना। यीशु मसीह ने किसको लेने आना है? दुल्हन को। और अगर आप फिरकों में बटे हुए होंगे तो आप दुल्हन के शामिल नहीं हो सकते। आप दुल्हन में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि दुल्हन तो है ये सारी दुनिया में से इकट्ठे किए हुए लोगों की एक जमात होगी। ये नहीं है कि सरगोदे के सारे पेंटिकास्टल दुल्हन में शामिल होंगे। पेंटिकास्टल की भी बदकारियां तो जनाकारियां तो नशेबाजियां तो हर किस्म की गंदगी पाई जाती है। फराड, धोखाधड़ी, लालच, और बाइबल में लिखा है लालच जो बहुत परस्ती के बराबर है। हम लोग अपनी परस्तिश करते रहते, अपने बुद्ध की पूजा करते रहते, सानों को हटा के, सानों साहब जी को आके, सानों की आके फलाना साहब जी घर दे फलाना साहब जी आके बाद भी हम साहब जी रोटी कर। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी हुक्मरानी हो। और मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, खुदा की हुक्मरानी में रहना सीखें। शैतान ने हुक्मरानी की ये जो है ना आड़ में आकर के अपने आप को लूसीफर से अबलीस कहलवा लिया, अबलीस बन गया। हुक्मरानी करना छोड़ के आपकी खिदमत करना शुरू करें। हुक्मरानी की बात जब शागिर्दों में आई थी तो यीशु ने एक बच्चे को लाकर के उनके बीच में खड़ा कर दिया और उसने कहा कि जो इस बच्चे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो इस बच्चे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और उसने कहा जो तुमने बड़ा बनना चाहे वो सबका क्या बने? खादम बने, चौधरी ना बने। क्या बने? खादम बने। और अगर हमारे अंदर चौधराहट की रूह है और हम दूसरों को भी लालच दे करके अपने साथ मिक्स और मिला रहे हैं और हम कलीसिया में तफरका डाल रहे तो हम कूड़ा है। और अगर कूड़ा है तो जहन्नम में फेंका जाना हमारा नसीब है। कोई मत कहे कि नहीं जी मैं भरीजी जाऊंगा। मैं कहता हूं ऐसे ही लोग जो कि खुदा के हुक्मों के अगेंस्ट चल रहे हैं वो आग और गंदगी की झील में डाले गए। आज अपने आप को परखे, सोचें कि क्या मैं कूड़ा तो नहीं हूं? क्या मैंने अपनी जिंदगी को खुदा को दे दिया है? क्या मैं छोटा बन करके कलीसिया में खुदा के काम कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ चौधराहट के लिए आता हूं, बड़ा बनने के लिए आता हूं तो लोग मुझे बड़ा समझें?
अपने आप को पर हम सोचें और अपनी गलतियों पर वाबैला करें, माफी मांगे उससे, उसको कहें कि हमें माफ कर दे। और अगर हम अपने गलतियों और कोताहियों और अपने ये बड़े बड़े जो ब्लेंडर्स हैं इनका इकरार करके हम इसको तर्क नहीं करेंगे तो समझ लें हम कूड़ा और करते रहें, और अगर कूड़ा करते रहें तो आग और गंदगी की झील में जाएंगे। उठ गए अपने कदमों के ऊपर, उठे और खुदा से